Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic comparing the three sectors, and this is the topic of class 10th economics chapter number 2. So in the last video we started with the chapter number 2 and we discussed that we have classified the economic activities into three sectors. First one being primary sector. In this sector the products are extracted directly from the nature, or natural resources are used to produce the goods. We took the example of cotton, we took the example of mining. So all these products which are directly being extracted from the nature, which are being produced with the help of nature, are known as or are considered under the primary sector. Then there was secondary sector. In secondary sector, what is being done that the products of primary sectors are used as raw material in secondary sector. Then the products of primary sector, they get processed, they go through a lot of changes, lot of processing, and we call this changing and processing as manufacturing. So in secondary sector products get manufactured, and that is why we also call this secondary sector as industry sector as well, industrial sector, because the manufacturing and all is associated with different industries. Then there was third sector, tertiary sector, and this sector doesn't produce any goods, but it provides services to the primary and secondary sector. So it is kind of support to both the other sectors. Primary and secondary sectors are able to run properly, are able to produce their products because of the help of tertiary sector. So we have discussed the examples with detailed explanation that how a product is being produced in primary sector, then in a secondary sector, and then tertiary sector, and how all these three sectors are interdependent of each other. They are connected, they are not exclusive of each other, they are very much connected. And now in this video we are going to talk about the comparison of these three sectors. Though we already have an idea कि ये जो sectors हैं वो किस तरीके से अलग अलग हैं, किस sector में क्या होता है, but still हम एक दूसरे तरीके से इनका एक comparison करके देखेंगे. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. तो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स में, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. अब इन सेक्टर्स में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, बट कौन इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सके. So the next step therefore is to see how much goods and services are produced. तो अगला स्टेप हमारे लिए क्या देखना है कि हम ये देखें कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक सेक्टर में. मतलब हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है एंड प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इंगेज्ड हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से आ रहे हैं और कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं. देन हम देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर से कितनी सर्विसेज आ रही हैं और कितने लोग टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं. तो हम इस तरीके से देखेंगे और फिर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे. इन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स व्हिच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट व्हाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. तो किसी भी इकोनॉमी में क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक जो सेक्टर है हो सकता है वो डोमिनेट करे और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो स्मॉल हो साइज में. मतलब हो सकता है कि किसी देश में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे हो, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, और बाकी जो सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है हो सकता है उसमें कुछ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो. वहीं एक दूसरी कंट्री हो सकती है जिसमें आपको देखने मिले जिनका प्राइमरी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट सेकेंडरी सेक्टर बहुत बड़ा है. सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. मतलब कि अलग अलग देशों में आपको अलग अलग सिनेरियो देखने मिल सकता है कि किसी देश में आपको कोई सेक्टर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, दबदबा वाला होगा, और जो दूसरे सेक्टर हैं वो कम होंगे.
हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर। अब हमने ये तो कह दिया कि अब हमें ये देखना है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लोग जो हैं उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट सवाल ये है कि कैसे किया जाए, कैसे गिना जाए कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे गिने कि कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। With so many thousands of goods and services produced, you might think that this is an impossible task. अब देखो हजारों लाखों goods and services जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो इम्पॉसिबल है गिनना, ये टास्क तो बहुत बड़ा होगा। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हम कैसे गिनेंगे कि एक एक कार को हम गिने, एक एक कंप्यूटर को गिने, एक एक नेल मतलब एक एक जो कील बन रही है, एक एक फर्नीचर बन रहा है, इनको हम कैसे गिनेंगे? इट वोंट मेक सेंस। तो ये ज्यादा मतलब बात समझ सी नहीं आ रही कि कैसे गिना जाएगा। क्या हम घर घर जाके एक एक फर्नीचर, एक एक कील, एक एक लैपटॉप, एक एक कंप्यूटर, इनको गिनने वाले हैं? हम कैसे गिनेंगे? You're right in thinking so. तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual number. तो इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने एक तरीका सजेस्ट किया कि आपको नंबर्स गिनने की जरूरत नहीं है, आपको ये गिनने की जरूरत नहीं है कि 4 कारें बनी या 10 कारें बनी। आपको क्या करना है, उनकी वैल्यूज को ऐड करना है। आपको ये देखना है कि कितने लाख की, कितने करोड़ की कार बनी है। मतलब डोंट काउंट द नंबर्स बट ऐड दी वैल्यू, कि कितनी वैल्यू का वो सामान है। For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 20 per kg, the value of wheat will be 2 lakh rupees. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये नहीं गिनेंगे कि कितने केजी हमने गेहूं उगाया, बल्कि हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 10 केजी गेहूं जो है उगा और 20 केजी पर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बेचा गया। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि टोटल अमाउंट वीट का कितना था, टोटल वैल्यू क्या थी वीट की। तो 10,000 केजीज इंटू 20 रुपीज पर केजी हम करेंगे तो 2 लाख रुपए के वीट हुए। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 केजी वीट थे, 20 रुपए के बिके, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बिके, हम ये नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे कि 2 लाख रुपए के वीट जो है वो बिके। The value of 5,000 coconuts at rupees 15 per coconut will be 75,000 similarly. इसी तरीके से देखो कोकोनट की भी प्रोडक्शन होती है, तो हम एक एक कोकोनट को तो नहीं गिनेंगे कि देश में कितने करोड़ कोकोनट जो हैं वो बन रहे हैं, उग रहे हैं। हम क्या करेंगे कि कितने वैल्यू के वो कोकोनट बेचे जा रहे हैं। अगर 5,000 कोकोनट हैं और एक कोकोनट 15 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो हम टोटल वैल्यू देखेंगे कि हमारे देश में कोकोनट जो है वो 75,000 रुपीज के बन रहे हैं। Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then added up. इसी तरीके से जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा और उसको ऐड किया जाएगा। मतलब हम हर एक सेक्टर से देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कितने वैल्यू का गुड्स दे रहा है। अब देखो ये जो डेटा है ना वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे मार्केट वगैरह में पता चलेगा कि कितने केजी जो गेहूं है वो बेचा गया है, कितने केजी राइस बेचा गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डेटा मार्केट से कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। टीडियस काम है ये, अभी भी टीडियस काम है, बट स्टिल ये एक एक चीज को गिनने से बेहतर है कि हमने हर एक कंपनी से मांग लिया कि आपने कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस किया, आपने कितने वैल्यू की सर्विसेज प्रोड्यूस की, और उन्होंने एक हमें डेटा दे दिया कि हमारे जैसे कोई फार्मर है उससे हमने पूछा कि आपने कितने रुपए के गेहूं प्रोड्यूस किए, तो उसने बोल दिया कि मैंने 2 लाख रुपए के गेहूं प्रोड्यूस किए। अब हमें ज्यादा गिनती पे नहीं जाने की जरूरत कि 10,000 केजी था, 20,000 केजी था, हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा अमाउंट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज को गिना जाएगा, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा उनकी वैल्यू और उनको ऐड किया जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर से कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर से कितने वैल्यू के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, टेरिशरी सेक्टर से कितने वैल्यू की सर्विसेज आई हैं। Remember, there's one precaution one has to take. अब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक प्रिकॉशन लेना होगा। Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. अब जरूरी नहीं है कि देश में जितनी भी चीजें, हर एक चीज जो बनी है या सर्विस प्रोवाइड की गई है उस हर चीज को हमें गिनना जरूरी नहीं है। It makes sense only to include the final goods and services. तो जो बात है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करने की ज्यादा सही लगती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मतलब है? टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर रुपीज 20 पर केजी।
अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जो पूरा एग्जाम्पल है वो दिया गया है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब और क्यों बेहतर रहेगा इसकी वैल्यू को काउंट करना। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक फार्मर है, उन फार्मर ने क्या किया, अपने गेहूं को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से एक फ्लोर मिल को, मतलब एक आटा बनाने वाली जो मिल है उसको बेच दिया। The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹25 per kg। जो मिल है उसने क्या किया, उसने गेहूं को पीसा और उस आटे को, जो आटा बना उसको एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया 25 पर केजी के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फार्मर ने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, अभी हम मान के चलते हैं 1 केजी का ही लेते हैं, ठीक है, 1 केजी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से जो सामान है वो फ्लोर मिल को बेचा गया। अब जो फ्लोर मिल है ये FM फ्लोर मिल और ये फार्मर, फ्लोर मिल ने क्या किया, आगे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को ये जो आटा है वो 25 रुपए पर केजी पे बेचा। मतलब इस मिल ने क्या किया, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीदे थे, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से आटा बेचा, तो 5 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, उसका रॉ मटेरियल आया था 20 रुपए पर केजी का, उसने सेल की 25 रुपए पर केजी की, तो उसको फायदा कितने का हुआ, 5 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट कंपनी ने क्या किया, आटे को, शुगर को, ऑयल को, इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया और 4 पैकेट बिस्किट के बनाए। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹80, ₹20 पर पैकेट। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाए। ठीक है, इसने क्या किया, 4 पैकेट बिस्किट बनाए, 4 पैकेट्स, और हर एक पैकेट को 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बेचा। इसका मतलब इन टोटल 80 रुपए जो है इसने कमाए। The biscuits are the final goods, that is goods that reach the consumer। तो यहाँ पे देखो, बिस्किट बनाने के बाद बिस्किट का आगे और इस्तेमाल नहीं किया गया किसी फैक्ट्री में। बिस्किट जब बन गए, ये जो 4 पैकेट बिस्किट बने, इसको आगे डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया गया, और कंज्यूमर क्या करेगा, उससे कुछ नया नहीं बनाएगा, कंज्यूमर डायरेक्टली उन बिस्किट्स को खा लेगा। जब हमने यहाँ पे देखा, जब फार्मर ने अपना आटा, अपना गेहूं बेचा, तो उसके गेहूं को डायरेक्टली किसी ने खा नहीं लिया, कंज्यूम नहीं कर लिया, बल्कि उसके गेहूं को एक मिल ने यूज किया। उस मिल ने क्या किया, गेहूं को पीसा, उसका आटा बनाया और खुद यूज नहीं किया, बल्कि वो आटा आगे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। कंज्यूम करने का मतलब क्या है, जब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आगे बेच नहीं रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग योरसेल्फ, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। बट यहाँ पे फ्लोर मिल ने क्या किया, उसने जो गेहूं लिया था उसको पीसा और बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खुद खाया नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि ये खत्म हो गया आटा, बल्कि आटे को यूज करके क्या किया गया, बिस्किट बनाए गए। आटे के साथ साथ शुगर, ऑयल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके बिस्किट बनाए गए। ठीक है, तो आटा जो है वो अभी भी प्रेजेंट है बिस्किट की फॉर्म में, गेहूं जो है वो अभी भी प्रेजेंट है बिस्किट में, राइट। तो अभी ये अभी जो चीजें हैं वो चलती आ रही हैं। अब जब बिस्किट बन गया तो जो बिस्किट के पैकेट हैं वो 4 लोगों ने खरीद लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग थे, इन चारों लोगों ने एक एक पैकेट बिस्किट जो है खरीद लिया 20-20 रुपए का। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, अब वो बिस्किट खा लिए, तो अब बिस्किट खत्म एकदम, अब वो यूज हो चुके हैं एकदम कंप्लीट, तो हम क्या बोलेंगे, अब वो बिस्किट कंज्यूम हो गए। तो जब कंज्यूम हो जाती है चीज, तो इसका मतलब वो चीज फाइनल प्रोडक्ट थी, बिस्किट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट थे। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इन बिस्किट्स का यूज करके एक केक कंपनी क्या करती है, जैसे आजकल आप देखते हो केक बनाए जाते हैं बिस्किट का, ओरियो बिस्किट या जो भी दूसरे बिस्किट होते हैं उनका इस्तेमाल करके केक बनाए जाते हैं, शेक्स बनाए जाते हैं। मान लो एक बेकरी है, उसने क्या किया, उसने ये बिस्किट खरीदे, ये जो 4 पैकेट बिस्किट इस बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने बनाए थे, ये चारों पैकेट जो है वो एक बेकरी ने खरीद लिए। इस बेकरी ने क्या किया, 4 पैकेट बिस्किट जो हैं वो 80 रुपए के खरीद लिए। ठीक है, अब इस बेकरी ने क्या किया, एक केक बनाया इन बिस्किट्स की मदद से। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा कि बिस्किट की मदद से भी केक वगैरह बनाया जाता है, तो उसका अलग ही टेस्ट होता है, अलग फ्लेवर होता है। तो इस बेकरी ने एक केक बनाया इन 4 पैकेट बिस्किट की मदद से और इसको 250 रुपए पे बेच दिया। ये जो केक बना वो 250 रुपए पे बेच दिया। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा,
यहाँ पे आप फाइनल प्रोडक्ट किसको बोलोगे? और ये जो केक बेचा है ना, ये एक बच्चे का बर्थडे था, उस बच्चे के बर्थडे पार्टी में ये केक यूज किया गया और सारे लोगों ने केक को खा लिया। अब बताओ, अब फाइनल प्रोडक्ट क्या है? केक और बिस्किट, क्या चीज फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगी? यहाँ पे केक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि केक जो है अल्टीमेटली लोगों ने कंज्यूम किया। यहाँ पे जो बिस्किट थे, उन बिस्किट का इस्तेमाल बेकरी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाने में किया, खाया नहीं किसी ने। तो बिस्किट जो है अब वो वापस से क्या बन गया? एक इंटरमीडिएट गुड बन गया, मतलब बीच में इस्तेमाल होने वाली चीज बन गई। बट फाइनल प्रोडक्ट हम नहीं कहेंगे इस केक वाले एग्जाम्पल में, राइट? अगर बिस्किट को यूज करके आगे किसी ने केक बना लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि केक अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर गुड है, या केक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, राइट? तो केक की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो मतलब कि फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करेगा, ठीक है? और फाइनल प्रोडक्ट के अपोजिट में होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इस पूरी चेन में आप जो है अगर देखोगे तो हमने जो केक वाला एग्जांपल लिया था इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने अपने आप से बनाया है, बुक में इसका एग्जांपल नहीं है। तो हम बिस्किट को भी फाइनल प्रोडक्ट जो है समझेंगे, राइट? तो क्या हुआ है यहाँ पे कि गेहूं का इस्तेमाल किया गया आटा बनाने के लिए, तो हम गेहूं को क्या बोलेंगे? व्हीट को हम क्या बोलेंगे? ये एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, राइट? बीच। तो ये बीच में इस पूरे फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट बनने के प्रोसेस में आ रहा है आटा। तो गेहूं को यूज करके क्या बनाया गया? आटा बनाया गया। तो हम आटे को, सॉरी, हम व्हीट को क्या बोलेंगे? हम व्हीट को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। इस व्हीट को यूज करके आटा बनाया गया, आटे को यूज करके बिस्किट बनाया गया। तो अगेन आटे को यूज किया गया कोई और नया प्रोडक्ट बनाने में, तो आटा भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, राइट? एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट, क्योंकि बिस्किट को यूज करके कोई नई चीज नहीं बनाई गई, बल्कि बिस्किट को यूज कर लिया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करते हैं। Why are only final goods and services counted? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो काउंट होते हैं, ये भी हम बताएंगे। बट यहाँ पे सेम चीज बताई है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बीच में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे व्हीट फ्लोर, ये क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हुए, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए यूज होते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। तो क्यों हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं? क्योंकि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का अमाउंट इंक्लूड होता है। जैसे हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो गेहूं है उसको बेचा गया फ्लोर मिल को, कितने रुपए पे? 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। एंड फ्लोर मिल ने क्या किया? आटा बनाया, मतलब गेहूं को पीस के आटा बनाया और उसको 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो अगर हम अगर मान लो ये आटा किसी बिस्किट कंपनी को ना बेच के किसी हाउस होल्ड को बेचा जाता, मेरे जैसे आपके घरों में बेचा जाता, और फिर उस आटे को यूज करके हम डायरेक्ट रोटी बना लेते और खा लेते, तब आटा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता। उस केस में अगर आप देखोगे, मतलब अभी हम एक ही स्टेप पे रुक रहे हैं, अभी हम सिर्फ फ्लोर मिल तक रुक रहे हैं, ठीक है? मान लो फ्लोर मिल ने जो आटा बनाया वो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर फ्लोर मिल जो है वो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से आटा बेचेगी, तो क्या इस 25 रुपए पर केजी में ये 20 रुपए पर केजी इंक्लूडेड नहीं है? है ना? मतलब ये फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? उसने 20 रुपए पर केजी पे गेहूं खरीदे थे। इस 20 रुपए पर केजी में उसने क्या किया? अपनी मेहनत, अपना जो भी पूरा उसने टाइम लगाया वो इंक्लूड किया 5 रुपए, और उसने टोटल 25 रुपए का सामान जो है बेच दिया। इसका मतलब 20 रुपए उसका रॉ मटेरियल था, 5 रुपए उसका प्रॉफिट था। तो यहाँ पे जो आटे का प्राइस है 25 रुपए पर केजी, उसमें गेहूं का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? अब वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, बिस्किट वाले पे।
अब यहाँ पे क्या किया गया, फ्लोर मिल ने 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बिस्किट बनाने वाली कंपनी को आटा बेचा। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी के लिए आटा क्या है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि बिस्किट कंपनी क्या करने वाली है, वो इस आटे को एक नया प्रोडक्ट, एक बिस्किट बनाने में यूज करेगी। 25 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 1 केजी आटा खरीदा और 4 पैकेट बिस्किट बना दिए। 4 पैकेट बिस्किट्स को इस कंपनी ने, बिस्किट कंपनी ने कितने का बेचा, 20 रुपए पर केजी का, सॉरी 20 रुपए पर पैकेट का, और अल्टीमेटली 80 रुपए इन टोटल बिस्किट कंपनी ने कमाए इन 4 पैकेट्स को बना के। मतलब हुआ क्या कि बिस्किट कंपनी ने आटा खरीदा, वो कितने का पड़ा, 25 रुपए पर केजी का। इस 1 केजी आटे को यूज करके जो बिस्किट कंपनी है उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाए और 1 पैकेट बिस्किट की कीमत थी 20 रुपए। तो इन टोटल बिस्किट कंपनी ने कितने रुपए कमाए, 80 रुपए। अब आप खुद बताओ, क्या इस 80 रुपए में ये 25 रुपए इंक्लूडेड नहीं है? मतलब बिस्किट कंपनी क्या करेगी, वो सारे रॉ मटेरियल को का पैसा ऐड करेगी कि उसने 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 1 केजी गेहूं लिया था, मान लो उसने 30 या चलो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी ली थी, और मान लो उसने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या लिया, या इसको भी 20 ही बना देते हैं, तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से ऑयल लिया। 25 पर केजी का उसने आटा लिया, 20 पर केजी की चीनी ली, 20 पर केजी का ऑयल लिया। तो अब क्या हुआ, इन टोटल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, कॉस्ट मतलब सामान को, चीज को बनाने की लागत कितनी पड़ी, तो हम कह सकते हैं 65 रुपीज जो है वो बिस्किट कंपनी ने खर्चे बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। और वो बेच कितने प्राइस पे रही है, 80 रुपए पे। इसका मतलब अगर 60 रुपए उसने खर्चे हैं और 80 रुपए उसने कमाए हैं, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 रुपए का। इसका मतलब इन 80 रुपए में जितने रुपए का बिस्किट कंपनी ने बेचे हैं बिस्किट, उन 80 रुपयों में ऑलरेडी आटे का, चीनी का, ऑयल का, सबका दाम इंक्लूडेड है। तो अगर हम ऐसा करते, अगर हम हर एक गुड्स का प्राइस इंक्लूड करते, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते, हम फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू कंसीडर नहीं करते, हम क्या करते, हम हर एक गुड के, हर एक इंटरमीडिएरी गुड्स के प्राइस को इंक्लूड करते, तो क्या होता। तो देखो, हमने क्या कहा था, हमने बोला कि 20 रुपए पर केजी के हिसाब से व्हीट थे, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से आटा बेचा गया, और उसके बाद 80 रुपए के बिस्किट्स जो हैं वो बेचे गए, ठीक है, टोटल। तो अगर हम इन सारी चीजों को एक एक करके ऐड करते, अगर हम व्हीट के प्राइस को भी ऐड करते कि भाई बिस्किट बनाने में व्हीट यूज हुआ है 20 रुपए का, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि बिस्किट बनाने में आटा यूज हुआ है 25 रुपए का, एंड बिस्किट जो है वो खुद बने हैं कितने, 80 रुपए के, ठीक है, 80 रुपए के बेचे गए हैं। तो क्या ये चीज कितनी बनती, 125 रुपीज इन टोटल बनते। अब इन 125 रुपीज में देखो डबल काउंटिंग नहीं हो गई, इन 25 रुपयों में तो ऑलरेडी 20 रुपए इंक्लूडेड थे, एंड इस 80 रुपए में ऑलरेडी ये 25 रुपए इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल काउंटिंग नहीं हो गई ना, मतलब कि मैंने 20 रुपए आटे के, गेहूं के जोड़ लिए, और फिर मैंने जब फ्लोर को गिना तो मैंने पूरे 25 रुपए गिने, जबकि इस 25 रुपए में 20 रुपए तो इस गेहूं के ही थे, तो मैंने ये 2 बार काउंटिंग नहीं कर दिया, 2 बार काउंट हो गया ना व्हीट का प्राइस। सिमिलरली इस 80 रुपए में ऑलरेडी 25 रुपए आटे के इंक्लूडेड थे, हमने पहले देखा ना, तो इस 80 रुपए में ऑलरेडी 25 रुपए आटे के इंक्लूडेड थे, और हमने अलग से भी आटा इंक्लूड किया, तो आटा भी 2 बार काउंट हो गया, तो ये डबल काउंटिंग हो गई। तो ये चीज सेंस नहीं बना रही, आप सेम चीज को 2 बार क्यों जोड़ रहे हो, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, 20 रुपए का सही तरीका क्या होगा, 20 रुपए का हमने व्हीट खरीदा था, 25 रुपए के फ्लोर खरीदे, बट ये सारा प्राइस ऑलरेडी इस बिस्किट में इंक्लूडेड है, तो हम सिर्फ इसको ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वो प्राइस है जिसमें पिछला, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। इस बिस्किट को बनाने में जितनी भी चीजें यूज हुई हैं उन सब का अमाउंट इस 80 रुपए में इंक्लूडेड है। हमें
वापस से रॉ मटेरियल का पैसा ऐड करने की जरूरत नहीं है. So the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in the making of final product. तो जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू ऑलरेडी उन सारी चीजों की वैल्यू इंक्लूड करती है जो कि उस चीज को बनाने में यूज हुई है. बिस्किट के एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो बिस्किट की वैल्यू है वो 80 रुपए है. 80 रुपए जो है वो टोटल बिस्किट्स बेचे गए जो कि फाइनल गुड है. ठीक है, तो इस 80 रुपए में ऑलरेडी फ्लोर का पैसा इंक्लूडेड है 25 रुपए. एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड. और इस फ्लोर के साथ साथ जितने भी बाकी शुगर, ऑयल, जितने भी चीजें यूज हुई हैं उन सबका प्राइस इस 80 रुपए में इंक्लूडेड होगा. ठीक है, अब हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा. जब हमें पता है कि 80 रुपए में सारे रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्लूडेड है तो हम पीछे क्यों जाएं. हम जो रॉ मटेरियल का प्राइस है उसको वापस से इंक्लूड क्यों करें. इसकी वजह से डबल काउंटिंग होगी, राइट. तो अभी मैंने एग्जांपल बताया, आई होप कि उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लावर एंड व्हीट separately is therefore not correct because then we would be counting the value of the same thing a number of times. तो अगर हम इन इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे फाइनल गुड्स के साथ तो क्या होगा, हम सेम चीज को बार बार ऐड करेंगे. जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, जब ऑलरेडी फ्लावर का प्राइस बिस्किट के प्राइस में इंक्लूडेड है तो हम क्यों फ्लावर को अलग से ऐड करें. तो मतलब कि पहले हम व्हीट को ऐड करें, फिर फ्लावर को ऐड करें, फिर बिस्किट को ऐड करें, तो ये चीज सेंस नहीं बनाती. हमको क्या करना है, सिंपली बिस्किट को देखना है, क्योंकि बिस्किट के प्राइस में, बिस्किट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है और फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में पिछले इंटरमीडिएट गुड्स, उसको बनाने वाले रॉ मटेरियल, सबके प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं. तो बिस्किट का प्राइस जो है वो सबसे सही तरीका है यूज करने का, क्योंकि अगर हम बाकी चीजों को, इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करेंगे तो हम सेम चीज को 2-3 बार ऐड कर लेंगे. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. तो किसी भी सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या देती है कि उस सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन क्या हुई है. मतलब कि एक सेक्टर में टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सेक्टर के गुड्स की टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. And the sum of the production in 3 sectors gives what is called the gross domestic product. और जब हम तीनों सेक्टर से निकाल लेंगे कि हर एक सेक्टर से कितने वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, फिर उन तीनों को हम ऐड करेंगे. हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर से इतने रुपए के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर से इतने रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए एंड टर्शियरी सेक्टर से इतने रुपए की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई. हमने पहले ये देख लिया. जब इन तीनों सेक्टर्स का हम अलग अलग निकाल लेंगे तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे और तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमें क्या बताएगी, वो होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो होगी जीडीपी. जीडीपी ऑफ अ कंट्री मतलब उस देश में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये एक देश में एक साल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है. कितने रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसी भी देश में एक साल के अंदर, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज. जीडीपी हमें क्या शो करती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है. जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो बार बार कोशिश करता रहता है कि वो वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बन जाए, मतलब कि वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाए. अभी इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की, बट स्टिल वी आर एस्पायरिंग फॉर 3rd प्लेस, कि हम वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट जो कंट्री है, जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री हम बन जाए. तो जीडीपी क्या है, वो ये शो करता है कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है. जितना ज्यादा जीडीपी होगा इसका मतलब उतने ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उतने ज्यादा अच्छा वो इकोनॉमी कर रही है. क्योंकि देखो गुड्स एंड सर्विसेज क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है. मतलब कोई कह रहा है कि हाँ मुझे सामान खरीदना है, तभी तो वो सामान बन रहा है. अगर कोई सामान की डिमांड ही नहीं करेगा तो फैक्ट्रीज जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं. तो जीडीपी क्या शो करती है, जितनी ज्यादा जीडीपी है इसका मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ज्यादा प्रोडक्ट फिर लोग खरीद रहे हैं, और लोग खरीद रहे हैं इसका मतलब उनके हाथ में इनकम है उतनी ज्यादा, तभी तो वो खरीद पा रहे हैं. तो मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी बेहतर इकोनॉमी होती है. इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट
मिनिस्ट्री। तो मैमोथ क्या होता है? मैमोथ जो है वो एंशियंट टाइम में, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया है, वो एक तरीके का एलिफेंट था जो कि काफी बड़ा था, राइट? तो क्या बोला गया इन इंडिया द मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, मतलब ये जो जीडीपी को मेजर करने का जो इतना बड़ा टास्क है, इतना हार्ड काम है, ये कौन करता है? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, वो इस काम को करती है। This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to total volume of goods and services and their prices, and then estimate the GDP. तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है, वो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके और सारे इंडियन स्टेट्स जो हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, यूनियन टेरिटरीज के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करती है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, क्या वॉल्यूम है उनकी, पहले नंबर देखते हैं कि कितने क्वांटिटी हुई है, फिर उनके प्राइसेस देखते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो भी है कैलकुलेट करते हैं वो जीडीपी। मतलब कि हमारे देश में ये काम कौन करता है? एक मिनिस्ट्री करती है। कैसे करती है वो आपको अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में तो भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता चल गया कि हाँ, किसी भी देश में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब से कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने वैल्यू के, उन सभी के सम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जीडीपी, राइट? तो आई होप कि ये सेक्शन आपको पूरा क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, किस तरीके से फाइनल गुड्स के प्राइस को इंक्लूड किया जाता है, उनके वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते, एंड जीडीपी क्या है। तो ये मेन चीज़ें जो है हमने पढ़ी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।